Start. Hello students, I hope you all are fine, healthy and staying at home. So here I am once again with our next topic from the chapter Chemical Reaction and Equations. At the end of this chapter, you will be able to classify different types of chemical reaction, identify the characteristics of each type of chemical reaction. You also able to identify the exothermic and endothermic reactions. You can describe the corrosion and reactivity with their prevention methods. So, there are 7 types of chemical reaction. Combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, acid-base or neutralization reaction, double displacement reaction, combustion reaction, oxidation reduction or redox reaction. So let's continue with our first type of chemical reaction, that is combination reaction. Two or more reactants combine to form a single product. Means in reactant side, one or two or more reactants are combined together to form a single product. Example, carbon is burned in the presence of oxygen and release carbon dioxide. When we add H2O in a calcium oxide to form a calcium hydroxide. The point to be noted is a combination reaction has many reactants but only one product. Next one is decomposition reaction. A reaction in which a substance breaks up into two or more simple substances. AB gives A plus B. Example, the decomposition reactions held in 3 conditions. It may be in presence of heat, electricity, and light energy. So first one is heat energy. Thermal decomposition of calcium carbonate. When we applied a heat on calcium carbonate, it will decompose into an calcium oxide and carbon dioxide. Electricity. Decomposition of water by passing electric current. In an electrolysis process of water, it decomposes into an hydrogen and a oxygen. Due to an electric current being passed through the water, an electric power source is connected with two rods or two plates which is placed in a water. Hydrogen will appear at cathode side and oxygen will appear at the anode side. The amount of hydrogen generated is twice the amount of oxygen. Both are proportional to the total electrical charge conducted by the solution. Decomposition of silver chloride by light energy. AgCl, silver chloride, decompose into an silver plus chlorine. Its color also changed into a gray color. The point to be noted for this type of reaction is, in a decomposition reaction, always a one reactant and many product. Reactant side में एक ही product होगा, एक ही reactant होगा और प्रोडक्ट साइड में ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी बोला जाता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, उसमें टू और मोर रिएक्टेंट साइड में एटम्स थे, एलिमेंट्स थे और प्रोडक्ट एक ही था. इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एक ही होता है और प्रोडक्ट साइड में टू या टू से ज्यादा भी हो सकते हैं. Next one is single displacement reaction, a reaction in which one element substitute or displace another element in a compound to give an entirely new compound. इसमें क्या होता है, जैसे AB plus C gives CB plus A. इसमें क्या हुआ, C जो था उसकी रिएक्टिविटी जो थी वो A से ज्यादा थी, तो उसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह आके B के साथ बॉन्ड बना लिया और A को इस कंपाउंड से बाहर कर दिया. इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज ये है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के मतलब अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं. मींस जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही बॉन्ड ज्यादा बना पाएगा. जैसे कि एग्जांपल है आपका
Mg plus CuCl2 gives MgCl2 plus Cu. इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट होगा. आपने देखा होगा यहाँ पे CuCl2. CuCl2 मीन्स ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड है. ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है. इसमें Cl और Cl के 2 एलिमेंट्स जुड़े हैं, एक कॉपर का एलिमेंट जुड़ा है. इसने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो सिंगल एलिमेंट है. मीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट जो होगा उसका एक सिंगल एलिमेंट होना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. A reaction in which hydrogen of an acid react with an hydroxide of a base to form a water. इसमें क्या होता है, वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट जो मतलब बेस एसिड जो यूज करेंगे, एसिड के H+ आयन और बेस के OH+ आयन्स मिलके एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, यही इसकी खास बात होती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. अगर हम देखें एग्जाम्पल तो HCl जो है आपको पता ही है ये एसिड है. ठीक है, H+ आयंस रिलीज करते हैं, एसिड होता है. OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, उनको बेस बोलते हैं. तो HCl plus NaOH it will form NaCl which is our salt and H2O. H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है. तो एक नेक्स्ट अगर आप इसमें देख रहे हो तो H2SO4 plus 2NaOH. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका H2SO4 and 2NaOH. तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उसकी हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा वाटर रिलीज करने के लिए. तो 2H2O निकल गया है और यहाँ पे जो बचे थे इनका बॉन्ड बन गया है जो क्या हो जाएगा Na2SO4. ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वाटर होगा. तो उसी से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है. मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट साइड में एक वाटर का फॉर्मेशन एक नेसेसरी है, ये नीडी है, नेसेसरी है, हम लोग को H2O बनाना ही बनाना है, तो एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप उससे पहचान सकते हो प्रोडक्ट साइड में अगर आपको H2O दिखाई देता है तो. Next one is double displacement reaction. Double displacement reaction involves an exchange of ion between the reactants. Reactant में क्या करती है, वो ions का exchange करती है. यानी कि A जो है वो क्या करेगा, D के साथ bond बना लेगा और B जो है वो किसके साथ bond बना लेगा, C के साथ bond बना लेगा. AB plus CD gives AD plus CB. Example, MgO plus CaS gives MgS plus CaO. ठीक है, इस रिएक्शन में आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पे चला जाता है, कैल्शियम की पोजीशन पे आ जाएगा और जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम की पोजीशन पे चला जाएगा. ठीक है, तो इसलिए MgS plus CaO बन गया है. मतलब दोनों ने ही एक दूसरे के आयंस को रिप्लेस कर दिया है या एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को. और डबल डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि इसमें दो रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं. ओके, हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था कि दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एक एलिमेंट होना चाहिए. बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं, जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. Next one is combustion reaction. When all substance or carbonic substances react with an oxygen to produce an carbon dioxide and water. Here we can see that methane react with an oxygen in the presence of oxygen and it gives carbon dioxide and water molecule. You can see ethylene react in the presence of oxygen and carbon dioxide and H2O molecule is formed. Okay, combustion reaction is a exothermic reaction. Exothermic means इसमें से क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है. और इसके बारे में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ. कंबशन रिएक्शन जो है वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के नहीं हो सकती. इट कैन नॉट बी ऑकर विदाउट ऑक्सीजन. Next one is oxidation reduction or redox reaction, in which we firstly studied oxidation reaction. ठीक है, इसमें पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं, फिर रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
फिर रिडक्शन रिएक्शन और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो तो ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, रिमूव होगा। तो हमें पता चल जाएगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो रस्टिंग, रेनेसिड ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल किसके ही होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के होते हैं। तो व्हाट इज रस्टिंग? अ स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्टिंग ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कोरोजन एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है 2Fe2O3 यहाँ पे हमने H2O के आगे X इसलिए लगाया बिकॉज वी कांट कैलकुलेट द वाटर अमाउंट इन ए मॉइस्चर, बिकॉज मॉइस्चर के कारण ही क्या हो रहा है, लोहे में जंग लग रहा है। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग बाय पेंटिंग एन आर्टिकल और बाय प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप आर्टिकल के ऊपर क्या करते हो, जिंक की एक लेयर को पॉलिश कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके आर्टिकल से आयरन आर्टिकल के साथ नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से वो उसको कोरोजन अफेक्ट नहीं कर पाएगा, रस्ट नहीं कर पाएगा वो उसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ऑक्सीडेशन का बताया था, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ए कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। आपने देखा होगा काफी बार जो फूड्स वगैरह है, आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो पैकेट में आती है, तो वो काफी दिन अगर आपने उसका पैक खोल दिया एक बार, तो आप अगर उसको 5 या 6 दिन रखते हो तो उसके बाद थोड़े दिनों में उसमें क्या होता है, थोड़ा स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो एरियल ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो खाने में जो प्रेजेंट होता है फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें वो क्या हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आता है। और if you want to prevent the renacidity, then you have to add a antioxidant like butylated hydroxyl anisole or butylated hydroxyl toluene. These are two antioxidants जो कि आप क्या कर सकते हो, फूड को रेनिसिडिटी होने से प्रिवेंट करने से आप उसको बचा सकते हो। और if you want to packed food like chips or any packed food if you are using, then नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें एरियल ऑक्सीडेशन ना हो सके। काफी बार आपने कहते हुए भी सुना होगा, अगर मजाक के लिए मैं बोलूं तो, कि यार चिप्स 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लिया था, उसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई थी। तो वो हवा जो है वो आपके फूड के लिए अच्छा है, नाइट्रोजन गैस है वो, जो आपके फूड को एरियल ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करने में मदद करती है। ओके, so next is reduction reaction. In a reduction reaction, a reaction that involves the addition of hydrogen and removal of oxygen. It's totally opposite of oxidation. In oxidation हमने क्या किया था कि oxygen जो है वो add हुआ था और hydrogen remove हुआ था. In a reduction reaction, hydrogen is added and oxygen is removed. Okay. Example: hydrogen plus sulfur gives hydrogen sulfide. Photosynthesis reaction is also a reduction reaction, because in this reaction carbon dioxide with water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose and release oxygen. Okay, it's also release or evolve or remove oxygen from any substance, from a substance, so it's also considered as a reduction reaction. Okay, redox reaction. Oxidation reaction plus a reduction reaction is called redox reaction. Okay, इसमें क्या होता है कि कोई एक जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड का एक एलिमेंट क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज होगा और अनदर वन क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा। जैसे कि इसमें आपने देख रहा है AO प्लस B2, ठीक है, गिव्स A प्लस B2O। इसमें A जो है जिसके पास ऑक्साइड था, ये जो है ये रिड्यूस हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन जो है वो इससे रिप्लेस हो गया है, रिमूव हो गया है। एंड B2 जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन जिससे ऐड हो गया है, जिसके हम बोल सकते हैं इसमें ऑक्सीजन ऐड मीन्स ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन रिमूव मीन्स रिड्यूस। लेट्स टेक एन एग्जांपल. Copper oxide plus H2
गिव्स कॉपर प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन को रिमूव करके, ये क्या रिमूव करके ऑक्सीजन को, ये क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन अटैच हो गया है, जुड़ गया है, जो कार्बन ऑक्साइड के साथ था वो रिमूव होके H2 के साथ जुड़ गया है। इट मीन्स H2 क्या हो गया है, H2 ऑक्सीडाइज हो गया है, और कॉपर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। Chemical reaction depending on energy consideration can be classified into two types: endothermic reaction or exothermic reaction. So what is endothermic reaction? A reaction, the chemical reaction in which energy is absorbed. तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अगर हम लोग रखते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट उसमें रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट उसने क्या किया, इसको एब्जॉर्व किया, हीट को एब्जॉर्व किया, एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, जिसकी वजह से क्या बन गया, उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फॉर्म हो गया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्व की जाती है, एंडो मीन्स एब्जॉर्व। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम लोग इसका लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का इसमें क्या होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको क्या किया है, एक एनर्जी प्रोवाइड की है, एक बूस्ट अप प्रोवाइड किया है। NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके उसके बैटरी से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने प्रभावित किया उसके अंदर, तो उससे NaCl से क्या बन जाएगा, Na+Cl2। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब, ये एनर्जी मिलने के बाद ही ये एक्ट हुआ है, ये डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। Next one is exothermic reaction. तो exothermic reaction are the reaction in which energy is evolved, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब भी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड नथिंग एल्स देन, आपने देखा होगा चूने का जो पत्थर आता है, चूने का जो पाउडर भी आता है, तो उसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड उसी को बोलते हैं, चूने का जो पाउडर होता है उसको, उसके अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है, स्लेक लाइम वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम लोग H2 मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उससे हीट जो है वो रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। देख आप इसमें देख ही सकते हो, तो हीट इतनी इवॉल्व होती है, और जब आप उसको टच करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा गर्म भी लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हमने इन 2 वीडियोस के जरिए हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैंने कोशिश की है सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करने की। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।